हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव और इस वीडियो में हम कंटिन्यूइंग विद द सीरीज ऑफ सीबीएसई बोर्ड्स क्लास 10 एआई सब्जेक्ट। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो आपको मिलेगा पार्ट बी यूनिट 6 में। सो लेट्स बिगिन। आज का हमारा कंटेंट क्या होने वाला है? व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज, व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसमें चैलेंजेस क्या होते हैं एंड द वेरियस एप्लीकेशंस लाइक ईमेल फिल्टर्स, स्मार्ट फिल्टर्स, प्रेडिक्टिव टेक्स्ट, ऑटोमेटिक समराइजेशन, sentiment analysis, like text classification, auto-generated captions, language translation, and keyword extraction. So let's begin. What is natural language? The language that we use to communicate with each other. चाहे वो text के format में हो, चाहे वो verbal हो, किसी भी format में हम जिन text को, हम जिन words को हम use करते हैं एक दूसरे से communicate करने के लिए, उसको हम कहते हैं natural language. This language it is a type of language जो कि time के साथ evolve होती है. Like for example, the words like ASAP, FYI, ये starting में नहीं थे, but now they are the part of our language because the slangs they evolve with time. Second part is what is natural language processing. अब जब इस language के साथ हम किसी chatbot से, हम किसी machine से, किसी robot से interact करते हैं, communicate करते हैं, then जो process involve होता है उसे हम कहते हैं natural language processing. What are the challenges involved in it? Yes, अब देखो हमारी जो तरीका है बातचीत करने का, it has got various notifications, various terms. For example, we are using our tone. How are you? Hey, what are you doing? ये सारे tones होते हैं. But अभी if I am suppose speaking it out, what are you doing? It just means that I am asking someone, what are you doing? It means I am getting angry at someone. अब जब ये लैंग्वेज जब ये टेक्स्ट किसी रोबोट के पास जाता है, he didn't understand the tone of the language. तो उसके लिए the both sentence can mean the same. This is a small example. Similarly, हमारे tone है, हमारे similar sounding words हैं, then words having multiple meanings है, हमारे slangs है. They are all very diverse and ये diversity, the way of communication, the way of our gestures, they all make a lot of difference when this is being interpreted by a machine, by a robot, by a chatbot. So that makes it really a very challenging part for the robot to understand. Let's see the applications of natural language processing. The very first I have mentioned over here is email filters. हमारे पास emails में we really on an average everyone receives about 10 to 20 emails per day. But are these emails really important to us? No. If you would have seen in your Gmail ID, we use the folder categorization कि updates का होता है, forums का होता है, promotion का होता है, and the basics of all बहुत पुराना है spam. Spam folder अलग होता है. Now all the mails that you are receiving from someone, these mails are being read by a machine. They interpret that what type of text it is. क्या इस मेल को हमें स्पैम में भेजना चाहिए या ये मेल की कोई प्रमोशनल मेल है जिसको हमें प्रमोशन फोल्डर में भेजना चाहिए या सोशल मीडिया से बिलोंग करता है तो इट शुड गो टू दिस अपडेट्स फोल्डर सो ऑन. सो दिस इज वन ऑफ द वे जब आपका टेक्स्ट जो है मशीन रीड आउट कर रही है एंड देन इट इज ट्राइंग टू कैटेगराइज इट अकॉर्डिंग टू द फोल्डर्स. सेकेंड आपका आता है स्मार्ट असिस्टेंट्स फॉर ऑल दिस वर्क दैट वी आर डूइंग. Like we are using a chatbot for our work, we are using a robot, we are like for all this like we are using the Alexa with us. Hello Alexa, can you please play this song? Hi Siri, how are you doing? ये सारे smart assistants हैं हमारे. अभी I am sitting around and I am saying to Alexa, please switch on the light of that room. Please switch on the fan of my bedroom. This is the smart assistants, or in some way we are using language to communicate with that robot, with that device. थर्ड आपका आता है predictive text. सबने नोटिस किया होगा आप गूगल पे कोई क्वेरी टाइप करते हो, you have typed the alphabet H. It gives a suggestion how, hello, hi. Or you have typed like GR, it will give grade. समथिंग लाइक जो भी प्रेडिक्टिव आपको लगता है, जो मशीन को लगता है, जो आपने फ्रिक्वेंटली यूज किया है या फिर जो वर्ड बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है,
If I am typing DHU, it will instead give Dhurandhar trending movie. So these are the way जिसमें कि मशीन आपके टेक्स्ट को, आपके अल्फाबेट्स को लेता है, कम्युनिकेट इनपुट में लेता है, एंड इट गिव्स अ सजेशन, इट गिव्स अ प्रेडिक्शन which text you want to type further. नेक्स्ट आपका आता है ऑटोमेटिक समराइजेशन ऑफ बुक, समराइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. आप जो भी कुछ देते हो, आपका कुछ ऐसे है, उसको आपको समराइज करना है. कोई न्यूज आर्टिकल है, you don't want to read the complete news article, you just want to the summary of the today's news headlines. You ask the machine, you ask to Alexa to give me the summarized news of the day. जितनी भी न्यूज हेडिंग्स होती हैं उन सब का वो समराइज फॉर्मेट में इट विल गिव यू. समराइजेशन आपके कीवर्ड्स के हिसाब से होता है, आपके वेरियस जो सेंटिमेंट्स से कई सारे फीचर्स होते हैं जिसकी बेसिस पे हमारा डॉक्यूमेंट समराइज किया जाता है. नेक्स्ट आपका आता है सेंटिमेंट एनालिसिस. वेरी पॉपुलर, वेरी यूजफुल, स्पेशली बाय कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. आपने अमेजोन में जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, यू फाइंड द रिव्यूज ओवर देयर. उस रिव्यूज में पहला रिव्यू आता है AI जनरेटेड. जितने भी यूजर्स के फीडबैक्स होते हैं, रिव्यूज होते हैं, उन सबको वो रीड आउट करता है. सॉरी, उन सबको वो रीड आउट करता है. रीड आउट करने के बाद हर रिव्यू का वो सेंटिमेंट देखता है क्या है. वॉज दैट सेंटिमेंट वॉज पॉजिटिव या नेगेटिव या न्यूट्रल. जो भी आपने टाइप किए होते हैं रिव्यूज, उस सेंटिमेंट को एनालाइज करके उन सब के सेंटिमेंट्स को एक समराइज फॉर्मेट में आपको रिप्रेजेंट करता है. दे कन्वे टू यू. दिस इज द पावर ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस. मीडिया में कोई न्यूज आर्टिकल आता है, कोई न्यूज है, कोई मूवी है, कोई सॉन्ग है, उन सब में we all review the thing, we all write down it in the comment section. उस comments को वो analyze करता है कि इसका sentiment क्या था. If the public is taking it in a positive note, if the public is excited or not happy, whatsoever, this is comes under the sentiment analysis. Next आपका आता है text classification. अब text को जो आपका न्यूज आर्टिकल्स होते हैं उसमें कुछ आपके कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को अगर आप डालते हो तो उसके रिस्पेक्टिव आपको न्यूज मिलती है. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कि जो आपने टेक्स्ट दिया उस कीवर्ड्स के हिसाब से उसने क्लासिफाई करके वो आपको रिप्रेजेंट कर दिया, वो आपको सेंड किया, आपको विजुअलाइज किया. तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज लाइक कुछ जो आपके आर्टिकल्स हैं उनको आप किसी कैटेगरी में, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू नो, जैसे क्लासिफिकेशन होता है न्यूज़ में, लाइक बॉलीवुड न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, फाइनेंशियल न्यूज़, दीज ऑल कम्स अंडर द टेक्स्ट क्लासिफिकेशन पार्ट. फिर आपका नेक्स्ट आता है ऑटो जनरेटेड कैप्शंस. यूट्यूब पे आपने देखा होगा वीडियोस होते हैं, द वीडियो जो कि लाइक आई एम डिलीवरिंग दिस लेक्चर, इफ यू टर्न ऑन द कैप्शंस, द ऑल दैट आई एम स्पीकिंग इट आउट, इट विल बी रिटन डाउन ऑन योर स्क्रीन. दिस इज द टेक्स्ट कैप्शन जनरेशन. So this caption generation is very much helpful for those who are like having the hearing impairment. उनके they are like, it's a blessing that they can read out the stuff that they cannot listen. Next आपका आता है language translation. Yes, language translation like we are living in a beautiful country, India, where there is a lots of diversity. और हमारी countries में there are more than 20 or like 100 of languages over in our country. तो आप लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हो अपनी नेटिव लैंग्वेज में. आप किसी भी लाइक कोई डॉक्यूमेंट है आप उसको नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके रीड आउट कर सकते हो. इफ इट इज अ वॉइस यू कैन लिसन इन योर नेटिव लैंग्वेज. नेक्स्ट कम इज कीवर्ड एक्सट्रैक्शन. कीवर्ड एक्सट्रैक्शन मीन्स जो भी आपका लाइक कीवर्ड एक्सट्रैक्शन इज वेरी पॉपुलर अमंग द सोशल मीडिया वेयर वी टॉक ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पर वो किसी भी टॉपिक के कुछ जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं विच आर मोर ट्रेंडिंग, मोर पॉपुलर, देयर इट फाइंड इट आउट कि इस डॉक्यूमेंट का, इस वीडियो का कीवर्ड्स क्या क्या हैं. उन कीवर्ड्स के हिसाब से जो भी यूज़र उसको रीड आउट करना चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट का है, उनको सजेशन भेजता है. सो these are some of the applications of natural language processing. So this is for this video, and in the next video we would be studying about what are the steps required in natural language processing and paragraph of the words model. Okay, so do watch out our videos. If you like this video, please share it with your friends. Do post your comment, any queries, whatever you have, post it in the comment section. Thank you everyone. Bye bye.